الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حقه سبحانه تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں. سب سے پہلے دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں اس پروردگار اس باری الہ کے حضور. اے پروردگار، اے مالک و خالق، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ بس اعضا یہ صف اعضا بچ چکی ہے، پروردگار ہر مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی اس محنت کو، اس صف اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن جہاں جہاں سے جتنے قدم چل کے صف اعضا پہ آیا ہے اس کے ہر قدم کو عبادت میں شمار فرما. بر الہ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. پروردگارہ مقصود بھائی میرے اہل سنت بھائی ہیں، پچھلے سال بھی میرے ساتھ تھے، اس سال بھی میرے ساتھ ہیں. پروردگارہ مل کے سب آمین کہیے گا. یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے نہیں، ہم تو خادم اس فرش اعضا کے، یہ سید الشہداء کے مہمان ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے. پروردگارہ جتنے بھی اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، میرے خصوص مقصود بھائی کی جو نیک دلی حاجات ہیں پوری فرما. پروردگارہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں مجھ حقیر سمیت، پروردگارہ بھی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ تمام بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ اس بارگاہ میں جس نے جس طرح بھی تعاون کیا، کسی مومن کے سننے میں آیا اس نے پنکھے لگوائے ہیں، جس نے جو تعاون کیا لنگر نیاز اس سخت موسم میں امام حسین علیہ السلام کی نوکری میں مشغول ہیں. پروردگار ہر مومن کی اس نوکری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. باری الہ اس مشکل دور میں جتنے بھی مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں تمام مومنین کو رہائی نصیب فرما. پروردگار آج اس دور میں اس کائنات میں یہ ایک جو موذی مرض جو ایک کرونا وائرس جو شروع ہو چکا ہے، پروردگارہ سید الشہداء کے آخری سجدے کا صدقہ تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما اور اس وائرس کو جلد سے جلد ختم فرما. پروردگارہ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، کندھوں تک لائیے گا. بار الہ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، ہمارے وارث آقا و مولا کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے پیش ہو سکے. صلوات مل کے آواز سے بلند پڑھیں. نعرہ حیدری، بلند تر سلامات. ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھے لکھے چہرے معزز سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہے. پروردگار آپ سب کا صف اعضا پہ آنا قبول و منظور فرمائے. یقین موسم بھی سخت ہے لیکن جہاں پہ بات مودت کی ہو وہاں پہ موسم کی سختیاں نہیں دیکھی جاتی. واہ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. بے شک. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت بتاتا چلوں کہ آپ کو چند دوستوں نے کسی محفل میں بلا لیا، آپ وہاں گئے اس دوست کی محبت میں، وہاں پہ بجلی چلی گئی، گرمی ہو گئی، پریشان ہو گئے، ایک اٹھ کے چلتا آئے گا، چلتا جائے گا، بالآخر سب چلے جائیں گے. یہ ہے محبت. لیکن مودت کا تقاضا کیا ہے؟ بجلی ہو نہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جو بھی موسم ہو، ذکر حسین ہوگا. واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک. عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں. عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. بے شک بے شک. واہ. بزرگ کی ہمت دیکھی، انہوں نے نعرہ کتنا بلند لگایا اور آپ نے جواب کیسے دیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
अमल बताया करता हूँ, आज एक अमल बताने लगा हूँ। माशाल्लाह। बताना ये मैंने कल था, लेकिन आज बताने लगा हूँ कि जब आप मजलिस अज़ा में तशरीफ़ लाते हैं, पिछले कुछ सालों में महमूद शाह जी आपके साथ कुछ साथी बैठा करते थे, जो आज इस दिन हमारे साथ नहीं। सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लाना हर अज़ादार की ख्वाहिश है। जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसे ही आप घर से निकलते हैं ना, वज़ू वज़ू करते हैं, मैंने सैयद शुहदा की मजलिस में जाना है, तो नियत किया करो, मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरे अजीज़ व अकारिब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं उनकी नियाबत में फर्श अज़ा पे जा रहा हूँ। फ़कत आप नहीं होंगे सफ़े अज़ा के शरीक, वो मरहूमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी सफ़े अज़ा पे होंगे। और मजलिस हुसैन क्या है? मजलिस हुसैन एक इबादत है। इबादत की इब्तदा कहाँ से होती है? हमेशा ताहिर होके आए, बावुज़ू होके आया करें। वुज़ू की फजीलत क्या है? वुज़ू क्या है? पानी का चुल्लू लिया, बाबर भाई, पानी का चुल्लू लिया, मुंह में डाला, नाक में डाला, मुंह, सर का मसा, पाँव का मसा, गर्दन का मसा किया, पानी बहा दिया, फायदा क्या हुआ? वुज़ू का फायदा ज़ाहिरी नहीं होता, ये आपके नफ्स को पाक करता है, ये अंदरूनी तहारत ईजाद करता है। उसकी मजलिस में आ रहे हो जो ताहिर व मुताहर है, खुद भी ताहिर है और पाक करने वाला है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो इसकी मजलिस में शरीक होते हो तो बावुज़ू रहा करो, दायमन वुज़ू हो जाओ। गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वुज़ू करने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा पानी लगता है। दायमन वुज़ू रहने का फ़ायदा क्या है? आप अपना कोई भी काम शुरू करने लगे हैं, आप दुकानदार हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, अगर आप बावुज़ू होके जाएंगे तो कुर्बत की नीयत से जाएंगे तो आपका वो काम रिज़्क़े हलाल के साथ साथ बंदगी खुदा शुमार होगा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा शुमार होगा। आपने वुज़ू किया, यहाँ पे बैठे, आपका वुज़ू टूट गया किसी वजह से, मुब्तलात वुज़ू में से कोई एक अमल अंजाम हुआ और वुज़ू टूट गया। अब आपने नियत कर ली है कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, अगर मैं यहाँ से उठता हूँ तो मेरा नुकसान होगा, मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, जैसे ही ख़त्म करके उठूँगा मैं दोबारा जाके वुज़ू करूँगा। तो आवाज़ आती है, ऐ मेरे फरिश्ते, इसकी नेकियां लिखने वाले, इसके नामे आमाल में बावुज़ू वाला सवाब काटना नहीं, इसने नियत कर ली है। वाह 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 वाह। अमाल का दारोमदार नियत पे है। रात को वुज़ू करके सो जाओ, ऐसे सारी रात जैसे मुसल्ले पे गुजारी। आपको तो दीन में सहूलतें ही बड़ी दी गई हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला से किसी ने सवाल किया, मौला हमारे कंधे पे जो दो फरिश्ते हैं ये किस लिए हैं? मौला ने कहा, दाएं कंधे वाला नेकियां लिखता है, बाएं वाला बदियां लिखता है। अच्छा मौला। मौला ने कहा, सुनो, आज तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ये रिवायत शायद नौजवानों ने ना सुनी हो, आपके लिए हदिया दे के जा रहा हूँ। मौला कहते हैं कि वो ज़ात इतनी करीम है, क्या कहने उस करीम ज़ात के। बाएं कंधे वाला जो है ना, वो हर रोज़ तब्दील होता है। दाएं कंधे वाला जो नेकियां लिख रहा है, वो फरिश्ता हर रोज़ तब्दील होता है, लेकिन बाएं वाला एक ही बैठा है। वो बंदा भी ऐसे हैरान हुआ जैसे अब आप हैरान हो गए कि मुला ये क्या वजह है? दाएं वाला रोजाना चेंज हो रहा है, नया रजिस्टर लेके आ रहा है, बाएं वाला हमेशा से बैठा है। मौला फरमाते हैं वो ज़ात बहुत करीम है, जब रोज़े महशर बपा होगा ना तो गुनाहों वाला एक ही गवाह होगा। जिसने गुनाह लिखे हैं सारी जिंदगी, सिर्फ एक ही शाहिद है, वो कहेगा बारे इलाहा इसने झूठ बोला था। लेकिन इधर तुम्हारी जितने साल जिंदगी है उस साल को कैलकुलेट करो, उस हिसाब से फरिश्ते बोलेंगे नहीं बारे इलाहा मैं गया था उस दिन इसने ये नेकी की थी। वो कहेगा बारे इलाहा इसने अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ी, इधर से अल्लाह जाने 70,000 फरिश्तों की सदा है ना, बारे इलाहा इसने अव्वल वक्त नमाज पढ़ी थी। क्या बात। करीम है वो ज़ात। बदियां लिखने वाला एक गवाह, लेकिन नेकियां लिखने वाला फरिश्ता हर रोज तब्दील। और जितनी तुम्हारी जिंदगी है उतने ही शाहिद, उतने ही गवाह तुम्हारी नेकियों पे हो जाएंगे। वो खुदा बख्शिश के बहाने ढूंढ रहा है। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। वाह वाह वाह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत की थी,
सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। माशाल्लाह। क्या इरशाद हो रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम। कुरान के एक एक लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो हर लफ्ज इल्म का खजीना है, हिकमत का मदीना है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किससे हो रहा है? मैं एक एक टुकड़ा करके आपको समझाऊंगा। मेरे अशरे का मौजू है इताअत उलिल अम्र। पहले हम उलिल अम्र समझेंगे, उलिल अम्र है क्या, फिर हम ढूंढेंगे कुरान से उलिल अम्र है कौन, फिर हम इताअत पे जाएंगे। कुरान से क्यों ढूंढेंगे? कल भी मैंने कहा था हमारे मकतब की ये पहचान है। हमारा मकतब किसी डेरे पे नहीं बना, हमारा मकतब वोटों से नहीं बना। मेरे मकतब की बुनियाद दो चीजें हैं, या फरमाने आले मोहम्मद या कुरान अल्लाह। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमन, किससे खिताब हो रहा है? मेरी मस्जिद में हर रोज मुअज्जिन सदा देता है, अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना व इमामल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अली मोमिनों के अमीर हैं, अली मुत्तकियों के अमीर हैं। तो अगर उर्दू अदब में इस आयत का तर्जमा यूं कर दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वाले, वाह 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 वाह। अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला किसे कहते हैं? जो मोमिन हो। वाह 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 वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वालो। तो कुरान में जहां जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, जाके देखना, कैलकुलेट करना। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं सारे या अय्युहल्लज़ीना आमनू दिखाऊं। या अय्युहल्लज़ीना अकीमुस्सलात, ऐ अली वालो नमाज कायम करो। बेशक बेशक। वाह 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 वाह, माशाल्लाह बेशक। सलावत पढ़ेंगे मिलकर आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। है कोई अरेंज या जारी रखिए? अपनी अपनी सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। समझना जो अली की विलायत, जिनके दिल में अली की विलायत का काबा मौजूद है। देखना मेरी तरफ, या अय्युहल्लज़ीना अकीमुस्सलात, ऐ अली वालो नमाज कायम करो, ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, ऐ अली वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे। ऐ अली वालो हज तुम पे फर्ज किया गया। ऐ अली वालो ज़कात तुम्हारे लिए, ऐ अली वालो रोजे तुम्हारे लिए, ऐ अली वालो हज तुम्हारे लिए, ऐ अली वालो खुम्स तुम्हारे लिए, ऐ अली वालो तवल्ला तबर्रा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तुम्हारे लिए। तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूँ, नमाजें चाहे जितनी भी पढ़ो, हज चाहे जितने मर्जी कर लो, रोजे चाहे जितने मर्जी रख लो, अगर दिल में अली की विलायत नहीं तो सब मुंह पे मारा जाए। सलामत रहिए, आप सलामत रहिए, हाथ कभी किसी के मोहताज ना। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ये रोजे तुम्हारे लिए हैं, ये नमाज तुम्हारे लिए है, लेकिन शर्त क्या है? विलायत अली। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। अब देखिए आगे इरशाद हो रहा है किस चीज का, पहचान लिया कौन है, कौन खिताब हो रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौन है? अली वाले। अब खिताब क्या है, कहा क्या गया? अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की,
سب سے پہلے حکم ذات خدا کی اطاعت. یا اللہ ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں, تو کرتا کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے, تجھے پسند کیا ہے, تجھے ناپسند کیا ہے. سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے, آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہو, اللہ کی آواز سنی ہو؟ یا اللہ بندے تو اعتراض کر رہے ہیں, ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں, اب اطاعت کیسے کریں؟ آیت رکی نہیں, آگے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, واہ 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 واہ. رسول کی اطاعت کرو. جیسے جیسے میرا رسول کرتا جائے, میرے رسول کی کاپی کرتے جاؤ, نقل کرتے جاؤ. میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. کیا بات. یا اللہ ہم نے تو تیرے رسول کو بھی نہیں دیکھا, بات تو مشکل ہو گئی. یا اللہ ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں, کسی نے لائیو ڈائریکٹ رسول خدا کی آواز سنی ہو, کوئی فرمان اپنے کانوں سے سنا ہو, نہیں. یا اللہ ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا. پھر اللہ نے اور آسان کر دیا, فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. واہ 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 واہ. اطاعت کرو اللہ کی, پھر کہا اطاعت کرو رسول کی, پھر کہا اطاعت کرو اولی الامر منکم, اس کی جو تم میں سے اولی الامر ہے. کیوں اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے. اب اولی الامر کون ہوگا؟ اب اولی الامر ہم ڈھونڈتے ہیں. اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا نبی معصوم ہے, ایسا ہونا چاہیے جیسا علم نبی کا علم ہے. واہ 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 واہ. اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جیسے نبی سید ہے, ایسا سید ہونا چاہیے. اولی الامر کیونکہ اولی الامر کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے, تو اولی الامر بھی ایسا تلاش کرنا ہوگا جیسا رسول معصوم ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, میرے ختمی مرتبہ خدا کی قسم یہ جملہ کہنے سے پہلے میں خود وجد میں آ گیا ہوں, تمہارا تو پتہ نہیں. میرے رسول آمنہ کے لال کہتے ہوئے فرماتے ہیں یا الی لحم کا لمی دمو کا دمی روح کا روح جسم کا جسم. کہاں لے جاؤں میں یہ جملہ؟ یا الی روحوں کا روحی جسموں کا جسمی لمحوں کا لمی دموں کا دمی. یا الی میرا جسم تیرا جسم, واہ 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 واہ. تیرا گوشت میرا گوشت, سبحان اللہ. تیری روح میری روح. یا الی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. تو پوری کائنات میں ہمیں رسول جیسا فقط علی ہی ملا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. یا علی لمحوں کا لمحی جسموں کا جسمی. ہاں. پھر فرمایا اللہم آدر الحق کا ما علی حیث دارا. فرمایا اے اللہ دعا کی علی کے حق میں, اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. نہیں کہا, میں نہیں کہہ رہا, وہ زبان کہہ رہی ہے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق, وہ وہی کہتی ہے جو وہی کہتی ہے. یہ نہیں کہا کہ علی جدھر حق مڑے تم نے ادھر مڑنا. خدا کے حضور کا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے. پوری دنیا اس تلاش میں ہے, حق کی تلاش میں ہے, لیکن حق جس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں. اگر کسی بندے کی پہچان کرنی ہو نا تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ حق پہ ہے یا نہیں. اگر حق کی پہچان کرنی ہو تو کلیہ کیا ہے؟ میں اپنی زبان سے نہیں, چلتے ہیں عزت باب سرکار ختمی مرتبت کے در پہ. یا رسول اللہ حق کی پہچان کرنی ہو تو وہ کیسے ہوگی؟ رسول خدا فرماتے ہیں یا ابا ذر, اے ابو ذر, اگر پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو, علی دوسری طرف, تو علی کے پیچھے جانا, کیونکہ جدھر علی جائیں گے حق ادھر جائے گا. سلامت رہے جی, آپ سلامت رہے. اچھا, پروردگار نے جہاں پر بھی اہل بیت کے فضائل پڑھے ہیں نا قرآن میں, قرآن کیا ہے؟ فضائل اہل بیت کا مجموعہ ہے.
جہاں پہ بھی فضائل پڑھے نا ان کا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. کیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ. نام نہیں لیا. یہ انفسنا، یہ نفس کون ہے؟ نام نہیں لیا. پھر آگے ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت سے میں نے رجس کو دور رکھا. اہل بیت کا نام نہیں لیا، بتایا نہیں ہے کون. جملہ ذہن میں آ گیا. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. قرآن مقدس میں میں نے ایک دن یہ آیت پڑھی، میں نے سوچا رجس کا معنی کیا ہے، رجس کا مفہوم. سوچا کہ لائبریری جایا جائے. بہت بڑی بڑی لائبریریاں ہیں. لائبریری جایا جائے، لغت کی کتابیں، قاموس الرجال بھی مل جائے گی، لغت عرب بھی مل جائے گی، بہت بڑی بڑی کتابیں مل جائیں گی. لغت کی 5-6 کتابوں میں رجس کا معنی ڈھونڈا، رجس کہتے کسے ہیں. پھر اللہ جانے ذہن میں خیال آیا، ارادہ ترک کر دیا. میں نے کہا جانے کی ضرورت ہی نہیں، آیت میں ہی بتا دیا گیا جو جو محمد آل محمد سے دور ہے وہ رجس ہے. اہل بیت بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون ہے اہل بیت. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے علی والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ نہیں بتایا. ہر آیت میں آیتیں پڑھتا رہوں، آیتیں ختم نہیں ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. کہ یتیموں کو کھانا کھلانے والا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا، اسیروں کو کھانا کھلانے والا. فضائل پڑھے، بتایا نہیں ہے کون ہے. لیکن ہم نے جب چاروں سور نظر کی تو ہمیں انفسنا کا مشتاق بھی علی نظر آیا. شب ہجرت رسول کے بستر پہ دیکھا تو علی نظر آیا. اہل بیت میں چادر کے نیچے پنجتن میں دیکھا تو علی نظر آیا. یتیموں کو کھانا کھلانے والا، جاؤ اٹھاؤ تفسیریں، میں نہیں کہتا، تفسیریں کہتی ہیں ہمیں کھانا کھلانے والا یتیموں کو علی نظر آیا. شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی نظر آیا. ہم نے جس طرف بھی نگاہ کی علی نظر آیا. اب آپ میرا ساتھ دیجئے گا، نوجوانوں مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. ممبر پہ علی، شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی، احد میں، بدر میں، احد میں، خیبر میں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے علی سے نہ دامن بچائیے گا، اگر بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. نگر گلی گلی، نگر گلی گلی، آپ کو علی ہی ملے گے. واحد ایک جہنم ہے جہاں پہ علی نہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے. کیسے گمراہی کیسے ہے اس میں؟ قرآن تو کتاب ہدایت کے طور پر آئی، گمراہ بھی کر دیتا ہے. آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن یہ کتاب ہدایت کے ساتھ نازل کی. اب جو چاہے اپنے لیے ہدایت لے، جو چاہے اس سے گمراہی لے. گمراہ کون ہوتا ہے؟ رسول خدا فرما کے جا رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت. وارث قرآن کو چھوڑ کے اگر فقط قرآن کو لے گئے تو قرآن گمراہ کر دے گا. جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا کل ایمان کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھیں گے مل کے باواز. اولی الامر سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. کیوں؟
कायनात की कुल्ली रहमत फरमा रही है, अल अली माल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। माशाल्लाह। कुरान फूल है, अली उसकी खुशबू है। कुरान नातिक है, अली सामित है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिए कौसर है। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह मुनाफिकून है, अली कातिल मुनाफिकून है। कुरान में सूरह रहमान है, अली बंदा रहमान है। कुरान में सूरह तौहीद है, अली वहदानियत की सनद है। वाह 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 वाह। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। कुरान में सूरह यासीन है, अली आले यासीन है। कुरान में सूरह तौहीद है, अली खुदा की वहदानियत की सनद है। कुरान नूर है, अली मोहम्मद का नूर है। कुरान पढ़ना भी इबादत, अली अली करना भी इबादत। कुरान को खाली खोल के देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। जुमला ज़हन में आ गया, सुनते जाओ। रसूल खुदा की हदीस है कि जिसने आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके इल्म में, बहुत लंबी हदीस है, नूह को उसके इल्म में, ईसा को उसके ज़ुहद व तक़वा में, फला 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 नबी को ये कमालात को अगर कोई देखना चाहे तो अली के चेहरे की ज़ियारत कर। हदीस आपने सुनी है, मैंने यहाँ से आपको क्या समझाना है इस हदीस से। देखिए, चेहरा जाहिर में होता है, ये सिफतें बातिन में होती हैं। इल्म बातिल में, हिल्म बातिल में, ज़ुहद बातिल में, तकवा बातिल में, हर नबी की सिफत बातिल में। चेहरा जाहिर में होता है, सिफतें बातिन में होती है। तो 1,24,000 अंबिया की सिफतें जो अपने चेहरे पे लेके घूमे, उसे अली अपने अभी ताल थक गए आप, कहाँ ले जाओगे जुमले, किसको सुनाऊं? लगता है थक गए हैं, आपके अपने इलाके का, इसलिए सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अली का चेहरा देखना भी इबादत, कुरान भी देखना इबादत। देखिए, इस कायनात में हर चीज़ के 4 वजूद होते हैं। माशाल्लाह। वजूद कत्बी, वजूद ज़हनी, वजूद लफ्ज़ी, वजूद हकीकी। हर चीज़ के 4 वजूद हैं। इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। ख़त्मे मरतबत ने फरमाया, या अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे काबा। या अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे काबा। तो अब हम बात शुरू करते हैं वजूद कतबी से। सलावत पढ़ेंगे मिलके बाबा से बुलंद। मेरे भाई तशरीफ लाए, इनके हक में मैं हमेशा दुआ करता हूँ। वो पता किस लिए? मैंने एक दिन ख्वाब में देखा था, कुमुल मुक़द्दस में अपने घर में सोया हुआ था। मैंने ख्वाब में देखा था कि हरम मासूमा में तशरीफ़ फरमा है। इनकी सेहत और सलामती के लिए और जितने भी मोमिनीन हज ज़ियारत के मुतमन्नी हैं, सब के लिए हज ज़ियारत की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। वजूद लफ्ज़ी, वजूद कतबी। आप कापी लें, पेंसिल लें, काबा 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 लिखते रहे, सवाब होगा, हज हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि फ़कत काबा लिखने से हज और उम्रा नहीं होता। वजूद लफ्ज़ी, बैठ जाए, सुबह से लेकर शाम तक तस्बीह पढ़ते रहें, काबा 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 काबा, हज या उम्रा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? हज और उम्रे के लिए उस काबे के पास जाना पड़ेगा। वजूद ज़हनी, बैठ जाएं, सोचते रहें, फिक्र करते रहें, अरे काबा काबा काबा, ज़हन में, हज हो जाएगा? नहीं होगा। वजूद हकीकी, वो काबा जो पूरी कायनात में जिसको बुलंद किया गया है, जिसको हजरत इब्राहीम ने तामीर किया था, जब तक उस काबा में नहीं जाओगे, उसका तवाफ नहीं करोगे, मनासिक हज अदा नहीं करोगे, तब तक हज नहीं होगा। फकत वजूद हकीकी। अब अली की मिसाल दी है काबा से, लेकिन अली तो काबा से भी आगे। कैसे?
भी उठाएं, लिखते रहें अली अली अली, सवाब मिलता रहेगा। चौक में कहीं मैदान में वजूद लफ्जी बोलते रहे अली अली अली, सवाब मिलता रहेगा। अगर बोले ना, खाली जहन में सोचते रहे अली अली अली, तो भी सवाब मिलता रहेगा। और जैसे काबा को देखना इबादत, वैसे अली के चेहरे को भी देखना इबादत। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हजरत आयशा सिद्दीका रिवायत करती हैं, एक दिन मैं अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थी, जब मेरे बाबा तशरीफ लाए, अली मुर्तजा भी बैठे थे। मेरे बाबा बात मुझसे करते हैं, देखते अली की तरफ है, बात मुझसे करते हैं, देखते अली की तरफ है। मैंने कहा बाबा, रसूल खुदा की फरमान के मुताबिक ये आदाब के खिलाफ है कि जिससे बात की जाए देखा भी उसकी तरफ जाता है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? गुफ्तगू मुझसे, देखते अली को है। जनाबे अबू बकर फरमाते हैं, मेरी बेटी, तूने रसूल खुदा से नहीं सुना अली के चेहरे की ज़ियारत इबादत। सलामत रहे, ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। देखिए, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का घराना वो घराना है कि ये अमल पहले करते हैं, आयत बाद में आती है। फर्क बताने लगा हूँ, नौकरों में और मालिकों में फर्क क्या होता है। नमाज की आयत आई, लोगों ने नमाज बाद में पढ़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम की आयत पहले आई, लोगों ने रोजे बाद में रखे। हज की आयत पहले आई, लोगों ने हज बाद में किया। लेकिन इन्होंने अली मुर्तजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अली ने अंगूठी पहले दी, आयत बाद में आई। मस्कीन, यतीम, असीर बन के कौन आया था? ये फरिश्ते आए थे। एक फरिश्ता कहता है मैं मस्कीन हूँ, एक कहता है मैं असीर हूँ, एक कहता है मैं गरीब हूँ। इन्होंने रोटियां पहले ली, सूरह इंसान बाद में नाज़िल हुआ। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अली का हाथ गदीर में पहले बुलंद हुआ। अल यौमा अकमलतु वाली आयत बाद में आई। वाह वाह वाह, बेशक ये घर अमल पहले करता है, आयतें बाद में उतरती हैं। बेशक। क्या कहने मेरे रसूल की शान के, मैं बड़ा ये जुमला पढ़ा करता हूँ कि आयतें क्या है, कुरान की कसीदा है मेरे नबी का। कहीं चादर ओढ़े हुए देखा तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। इखलाक़ करीमाना को देखा तो फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िल अज़ीम। वाह वाह वाह। लिबास को देखा तो फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर। जुबान को देखा तो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सीना मुबारक को देखा तो फरमाया अलम नशरह लका सदरा। बचपन को देखा तो फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा। और घर को देखा तो फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिजअल बैत व युताहिरकुम। वो घराना है, अमल पहले करता है, आयत बाद में नाज़िल होती है। लेकिन फर्क रखो, जो आयत आने पे अमल करे और जिनका अमल होने पे आयत आए। सलवात पढ़ेंगे उनके बाबा से। अब देखिए, कुरान मजीद में खुदावंद मुताल हमें हुक्म दे रहा है इताअत की, अपनी रसूल की और उलिल अम्र की। अब हमने ये पहचान लिया खिताब किससे है, ईमान वालों से। ठीक है, क्या करना है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलिल अम्र की। लेकिन उलिल अम्र बताया नहीं, अब उलिल अम्र हमने तलाश करना है। एक कायदा, एक कुल्ली है, एक कानून है कि कोई भी चीज पहचाननी हो तो उसे उसकी जिद से पहचाना जाता है। यानी ये रोशनी है, अगर इस रोशनी को पहचानना हो, जब अंधेरा छा जाएगा तो फिर आपको रोशनी की पहचान होगी कि दिन में रोशनी थी। रात के अंधेरे की पहचान कब होगी, जब सुबह सूरज तलू होगा।
जिद से पहचाना जाएगा। हमने तलाश करने हैं उलिल अम्र। वाह तो अब तक विलायत की चौखट पे बीबी मासूमा की जारोब कशी करते हुए जो भी इल्म की खैरात मिली है उन्हें अपने टूटे फूटे अल्फाज की माला में परो के आपका ये बेटा ये अदना सा तालिब इल्म आपको ये कुरान से साबित करके अशरा के आखिर में दे के जाएगा कि उलिल अम्र 14 है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। किसी भी चीज को पहचानना हो ना उसकी जिद से पहचाना जाता है। अब हम कुरान के पास जाएंगे, देखेंगे कि कुरान ने किन की इताअत से मना किया। कुरान ने किन की इताअत से मना किया। सूरह अहज़ाब की पहली और 48 नंबर आयत, दोनों के एक ही अल्फाज हैं, वला तुतियल काफिरीना वल मुनाफिकीन, वला तुतियल काफिरीना वल मुनाफिकीन। काफिरों की इताअत नहीं करनी और मुनाफिकों की इताअत नहीं करनी। जिद देखनी है, किसकी इताअत से मना किया जा रहा है? काफिर की इताअत से, मुनाफिक की इताअत से। अब काफिर कौन है? पहले काफिर ढूंढते हैं। काफिर किसे कहते हैं? मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, ज़हन में अचानक एक जुमला आ गया, हदिया करता चलूं। मेरे मौला का एक लक़ब है करम अल्लाह वजहुहु। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौजवानों ने दीनियात की किताब में अक्सर पढ़ा होगा अली करम अल्लाह वजहुहु, अली करम अल्लाह वजहुहु। मैं अपने भाइयों के मकतब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो लक़ब है, इन्होंने चोरी नहीं होने दिया। वाह 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 क्या बात है। वाह 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 वाह। बाकी सबके नाम के साथ जो लिखा जाता रहा, लेकिन अली अलैहिस्सलाम के नाम के साथ दीनियात में हमने करम अल्लाह वजहुहु पढ़ा है। लेकिन जब अब उस वक्त पता नहीं था क्या, लेकिन जब इसकी तफसीर पढ़ी तो पता चला कि अली की जात वो जात है जिसकी पेशानी पे अल्लाह का करम है। वाह 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 क्या बात है। वाह वाह क्या करम है। तो चलते हैं सरकारे खत्मी मर्तबत के दर पे। या रसूल अल्लाह, ये कौन सा करम है जिसकी वजह से करम अल्लाह वजहुहु कहा जाता है? तो बैद नहीं कि रसूल खुदा फरमाए कि अली और मेरी पेशानी ही वो पेशानी है जो सिवाय सादे खुदा के आज तक ना किसी को झुकी है ना झुकेगी। वाहिद अली की पेशानी और रसूल की पेशानी है जो आज तक न कभी किसी को झुकी है सिवाय खुदा के न झुकेगी। वाह 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 तो जो पता चला जो पहले काफिर था या काफिर है उसकी इताअत नहीं करनी, वाह वाह वो उलिल अम्र नहीं हो सकता। फतह मक्का का मौका है, मैं कैसे समझाऊं अल्लाह जाने, मैं इससे ज्यादा और तो खोल नहीं सकता, मेरी भी मजबूरियां हैं कुछ जाके ढूंढिएगा। फतह मक्का का मौका है, या दोनों भाई खरामा चलते हुए खाना काबा के करीब आए, खाना काबा का ताला खोला, दरवाजा खोला, अंदर गए, अब देखा बुत पड़े हुए हैं खाना काबा में, शिर्क का मरकज और मंबा पड़ा हुआ है, तोड़ने शुरू किए। नीचे वाले बुत दोनों भाइयों ने मिल के तोड़े। अब कुछ बुत ऊपर रखे हुए थे, ऊंचाई पे थे। अब रसूल खुदा ने अली मुर्तजा की तरफ देखा, या अली मैं आपके कंधों पे आऊं? अली मुर्तजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सैयदो सरदार, आकाओ मौला, आप हैं इल्म का शहर, मैं हूं दरवाजा, आप हैं उस्ताद, मैं हूँ शागिर्द, आप हैं मरकज और मैं उसका नुक्ता। या रसूलल्लाह, मुझसे आपका बोझ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अब मंजर क्या है? जोफे काबा, वारिस काबा, और वारिस काबा के कंधों पे है अली। वाह वाह काबा की जमीन कायनात में सबसे ऊंची है।
काबा कहती है ऊंची जगह को। वुजू वाली आयत में काबैन, पाँव का मसा करो उभरी हुई जगह तक। उभरी हुई जगह को सबसे ऊंची जगह है काबा। काबे के अंदर है रसूल के पाँव, रसूल के पाँव के ऊपर है रसूल की पिंडलियां मुबारक, रसूल की पिंडलियों के ऊपर रसूल का बाकी सारा बदन, रसूल के बदन के ऊपर रसूल के शाने, रसूल के शानों के ऊपर मोहर नबूवत। बाएं शाने पे अली का बायां कदम, दाएं शाने पे अली का दायां कदम। मैं कहता हूँ ये मंजर जब बना तो रसूल ने पूछा या अली खुद को कहाँ पा रहे हो? वाह 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 तो वाह। अली ने फरमाया मेराज वाले कंधों पे आज तो अली की मेराज हो गई। अली कैसी बुलंदियां महसूस कर रहे हो? तो अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ऐसी बुलंदियां के आसमान को छू सकता हूं। अली को कंधों पे बुलंद किया बुत तोड़ने के लिए, बुद्धि तोड़ने थे, यहाँ पे कोई जंग तो लड़नी नहीं थी। आखिरी जुमला और उसके बाद मसाइब। कल मैं फिर मुनाफिक पे आऊंगा। काफिर समझा रहा हूँ, ढूंढना आपने खुद है, मैंने इशारा करके गुजर जाना है, मेरी मजबूरियां हैं। काफिर किसे कहते हैं? अली हैं दोषे रिसालत पे बुत तोड़ रहे हैं, बुत टूटते जा रहे हैं, सवाल करते हैं मिलके। आइए सब चलते हैं बाहर गए रिसालत में। या रसूल अल्लाह बुत ही तो तोड़ने थे, यहाँ पे कोई जंग तो लड़नी नहीं थी। ना बदर का मैदान था, ना ओहद का मैदान, ना खैबर था कि यहाँ पे ना कोई जख्म खाना था, ना जख्म लगना था, ना भागने का डर, ना खड़े होने का डर था, ना भागने का डर था। यहाँ पे या रसूल अल्लाह किसी और को बुला लेते बुत तोड़ने के लिए तो अजब नहीं। ये सदाए तुम्हें नहीं मालूम, बुत वो ही तोड़ सकता है जो कभी बुतों को झुकाना हो। नारे बहुत अच्छा है, सलामत रहे आप जी। माशाल्लाह। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। जाने किसकी लगी नजर की घर मातमी हुआ। कल जहाँ से मैंने मसाइब छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ूंगा। तैयारी हो गई है सैयद शुहदा की। ज़हरा के लाल ने लिस्ट भी तैयार कर दी, महमल भी तैयार हैं। अब विदा का वक्त आया है, नाना की कब्र में आए। अल बकाया वल हवादिस में आगे मलबूबी लिखते हैं, वो कहते हैं हुसैन नाना की कब्र पे आए हैं, नाना की कब्र को सीने से लगाया, आलम ख्वाब में चले गए। ये ख्वाब में क्या देखा कि रसूल खुदा है, बाल बिखरे और जुल्फें बिखरी हुई हैं। हुसैन को सीने से लगाते हैं, मेरा लाल हुसैन, मेरा लाल हुसैन कहाँ की तैयारी है? हुसैन कहते हैं नाना अब तेरी उम्मत यहाँ पे रहने नहीं देती और मैं नहीं चाहता कि तेरे मुकद्दस शहर में हमला हो मेरी वजह से। नाना से विदा किया जमाना। फिर आए हैं माँ की कब्र पे। माँ की कब्र पे कैसे आए? पहले तो आहिस्ता आहिस्ता चलते आए, जैसे जैसे कब्र करीब आए ना, फिर माँ की कब्र पे ऐसे आए जैसे अली अकबर की लाश पे आया था मेरा मौला। मौला आपकी आवाजों पे रहम करें। ऐसे आके लिपटे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ को लिपट जाता है। रावी लिखते हैं कि कब्र में जलजला आया जैसे माँ लोरियां देती है अपने बच्चे को। माँ मदीना मुबारक हुसैन जा रहा है, अल्लाह जाने अंदर से सदा आई होगी हुसैन तो अकेला नहीं, तेरी माँ भी तेरे साथ है। अजरुकुम मिनल्लाह। रोने वाला मौला आपकी आवाज़ों पर रहम करे। अज़दार हुसैन जब हवेली में आए हैं, बीबी उम्मे सलमा ने देखा, बहुत प्यार करती थी हुसैन से। देखा हुसैन को तड़प गई। हुसैन कहाँ की तैयारी? नानी अम्मा इराक का इरादा। हुसैन रुको, हुजरे में गई, दौड़ के बीबी वापस आई, असा की टेप पे चलती है, बहुत ज़ईफ़ है। हुसैन को अपने हाथों में पाला, एक शीशी लेके आई। हुसैन अब मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा, हुसैन मेरा दिल तड़प रहा है। तेरे नाना ये शीशी दे के गए थे, उन्होंने कहा था उम्मे सलमा जब तक ये शीशी के अंदर जो खाक है खाक रहे, समझना मेरा हुसैन जिंदा है। जब ये खाक खो में तब्दील हो जाए, समझना नाना की उम्मत ने अजर रिसालत दे दिया। अज़दार मौला हुसैन कहते नानी जान आपको नाना ने बताया था और मैं दिखाता हूँ मंजर। मौला ने उंगलियों का इशारा किया, या बीबी ने देखा, बीबी की आंखें नहीं, अल्लाह जाने क्या है।
ہے. بی بی کریا کرتے جاتی ہے. مولا رو کے کہتے ہیں نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کو برچی لگے گی. بی بی کا کریا بلند ہوا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم پہ گوڑے بیٹھیں گے. پھر ایک منظر ایسا آیا, بی بی ام سلمہ کے صبر کے دامن ٹوٹ گئے. بی بی چیخ کے کہتے ہیں حسین یہ جگہ بہت سخت ہے, یہ برداشت نہیں ہو رہی. مولا کہتے ہیں نانی یہ وہی جگہ ہے, تیرا حسین ہوگا. کوئی پتھر مارے گا, کوئی تلوار. ایک روایت سنتے جاؤ, یاد آ گئی. میرے مولا فرماتے, مولا امام رضا فرماتے, میرا سلام ہو میری جد پہ قد صبحا من القبش, جس کو بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا. عزادارو رونے والوں, لوگوں نے سوال کیا مولا بھیڑ کی طرح کیوں کہا, مولا آپ نے یہ کیوں کہا. مولا بکری کی طرح کہہ سکتے تھے, کوئی اور مثال دے سکتے تھے. اب سنبھالنا اپنے جگر کو. مولا کی چیخ نکل گئی. مولا رو کے کہتے ہیں جاہلیت کے دور میں عربوں کا ایک دستور ہوتا تھا, پیڑ کا ایک بچہ پالتے تھے. سارے سال کے بعد, پھر سال کے بعد یہ لوگ ایک کھیل کھیلتے تھے, اس کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. جس کے ہاتھ میں جو بھی ہوتا تھا اس پیڑ کو مارتے جاتے تھے. تو کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی پتھر پھینکتا تھا, تو وہ بھیڑ اس طرح مر جاتی تھی. مولا کہتے میرے چھت کو اسی طرح ذبح کیا گیا جیسے جاہلیت میں پیڑ کو ذبح کیا جاتا تھا. اجر رسالت میں جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار چلائی, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے وار کیا. آئے میں قربان جاؤں, جس کو کچھ نہ ملا کربلا کی گرم ریت گھر. وَسَيَلَوْ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِن شَاءَ اللَّهُ